Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Today, we are going to start the next chapter, that is chapter number 13, surface areas and volumes. As all of you know, in the class 9th and in earlier classes also, you had done the you had work on the different shapes like cube, cuboid, cone, slender and sphere. In fact, you all of know that the formulas of surface area and volume of all these shapes. Now, in this chapter, we will work on the combination of two or more basic solids. In our day-to-day life, if we will see that there are so many figures in which we will use the combination of two and more figures. Like if we will see in this figure, here is the truck. At the back side of the truck, this is like a capsule, and here there is a there is a cylinder and the two hemispheres are here. At the end, two hemisphere, and in between there is a cylinder. So it is a combination of different figures. So this kind of questions we will solve in this chapter. So let me start with the first question from the exercise 13.1. Like in the first question, the question is that two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. अब इस फिगर में हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास दो क्यूब्स हैं, उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. तो दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया और दोनों का वॉल्यूम हमें गिवन है. द वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अगर हम दो क्यूब को साइड बाय साइड ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा. अब हमें दोनों क्यूब का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. The volume of one cube is 64 centimeter cube. So if the volume is given, can we find out the edge of the cube? So the volume of cube is a cube and the value is 64. This is the formula. So the edge of the cube will become 4 centimeter. This is the edge of one cube. अगर हमने दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. That will become 8 centimeter. And the breadth, it will remain same 4 centimeter, and the height will also remain same, that will be a 4 centimeter. Now we have to find out the total surface area of the cuboid. So we know the formula of total surface area. The formula of total surface area is twice of LB plus BH plus HL. We have a value of LBH. So we will put down the values and we will get the answer 160 centimeter square. Now let me come on the next question, that is a question number 3. So in the question number 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the cone. So first of all, I just draw the figure here. So this is the figure. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टॉय है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन. तो एक टॉय है वो कोन की फॉर्म में है. जो कॉन किसके ऊपर है सर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर के ऊपर ही हमारा ये कोन बना हुआ है. इसका रेडियस हमें गिवन है, तो दोनों का रेडियस हमारा सेम है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी. दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. या नेक्स्ट हमें एक चीज़ और गिवन है, इस पूरे टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर. ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी. तो अगर हम ये यहाँ से 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी. दैट विल बिकम 12 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. तो हम कोन का अलग निकाल लेंगे और हेमिस्फीयर का अलग निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके वी विल गेट द आंसर. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, रेडियस हमारे पास हेमिस्फीयर की भी यही है और कोन की भी यही है. तो पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट किया. द फॉर्मूला इज 2 पाई आर स्क्वायर. रेडियस इज 3.5. हम वैल्यू पुट करके वी गेट द आंसर, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमने क्या किया, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, जो कोन है उसकी हाइट फाइंड आउट कर ली. I already told you how can we find out the height.
So it will become 15.5 minus 3.5, that will become equal to 12 centimeter. Now the next is रेडियस ऑफ कोन हमारे पास है 3.5. स्लांट हाइट हमें चाहिए होगी क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली. हमारे पास हाइट भी था, रेडियस भी था, तो हमने वैल्यू पुट करके वी गेट द स्लांट हाइट दैट इज इक्वल टू एल. तो एल विल बिकम 12.5 सेंटीमीटर. ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है. नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल. ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें. पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 थी, तो पॉइंट रिमूव करके 10 आ जाएगा. एल की वैल्यू थी 12.5, पॉइंट रिमूव कर दिया, 10 आ जाएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट दिस आंसर. अब हमें तो निकालना क्या, टोटल सरफेस एरिया. तो दोनों के सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे, और हमने दोनों के सरफेस एरिया को ऐड करा एंड वी गेट द आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So in this way we can do this question. Now let me come on the next question, that is question number 5. In the question number 5, a hemisphere depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. पहले इसकी फिगर एक बार थोड़ा सा देखें कि क्या करें. हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है. डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. ये हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें हमने एक वो निकाल लिया हेमिस्फीयर, हमने डिप्रेशन कट करके निकाला है. सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज एल, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. तो जो ये हमारे पास एज है वो एल है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, दैट विल बिकम L/2. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो जो हमने ये पोर्शन निकाल लिया, उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन बचा है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है. तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है, एज ऑफ क्यूब भी दिया हुआ है जो कि एल दिया हुआ है. अब मैंने भी आपको बताया ये एज है पूरा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, दैट विल बिकम L/2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो हम क्या करेंगे, जो ये टोटल क्यूबिकल ब्लॉक है उसमें से ये हेमिस्फीयर जो स्कूप आउट किया है उसको एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे. अब ये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि ये जो शेप ऊपर की हो गई वो क्या हो गया, स्ट्रेट ना होकर इस फॉर्म में आ गई है. तो वी हैव टू ऐड दिस वन एरिया. और हमने क्या किया, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर है जो हमने इसमें से स्कूप आउट किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम वही करेंगे यहाँ पे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6L². एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो किस फॉर्म में, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है. किसी का बेस जो होगा वो हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वो सर्कल की फॉर्म में होता है, सो πr². एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr². इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया πr². आर की वैल्यू कितनी है, L/2, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट द आंसर L²/4 24 प्लस पाई. सो दिस इज द आंसर. Okay, let me move on the next question, that is question number 7. That is an important question. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas for the tent at the rate of ₹500 per meter square. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अब हमने करना क्या है, पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो जो हमारा टेंट है वो किस शेप का दिया हुआ है, कुछ इस शेप से दिया हुआ है. लेट अस सी. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. ये सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल टाइप की टॉप है. ठीक है. द हाइट ऑफ द सिलेंडर,
द हाइट ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4. तो हमारे पास क्या हाइट दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर. तो हमारे पास हाइट तो हो गई 2.1, तो ये हमारी पूरी हाइट हो गई, दैट इज 2.1 एंड द रेडियस दैट इज 4 सेंटीमीटर था, तो उसका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. ओके, लेट मी स्टार्ट. अब हमने इसको दो पार्ट्स में, हमारे पास एक ऊपर कोन है, नीचे हमारे पास सिलेंडर है, तो दोनों का हम अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं. तो पहले मैंने S1 ले लिया. S1 मैंने ले लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन. पहले कोनिकल पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है πRL, फॉर्मूला ये होता है. हमें दिया क्या क्या हुआ है, ये हमें दिया हुआ है स्लांट हाइट दी हुई है, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर. रेडियस हमें गिवन है, तो वी जस्ट पुट डाउन द वैल्यू एंड वी विल फाइंड आउट दिस. मैंने इसको पाई में ही छोड़ा है कि लास्ट में हम लोग इसको पुट कर लेंगे एक ही बारी में. नेक्स्ट आ रहे हैं हम सिलेंड्रिकल पोर्शन पे. रेडियस हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है. मैंने इसको S2 ले लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन. फॉर्मूला क्या होता है, यस 2πRH. R की वैल्यू है हमारे पास और H की वैल्यू है. हमने इसको पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 8.4 पाई मीटर स्क्वायर. तो दोनों आ गए, हमें टोटल निकालना है. तो क्या करेंगे लास्ट में, बस हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है एंड वी गेट द आंसर. तो हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा. एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट S1 प्लस S2. वैल्यू हमारे पास S1 की भी है और S2 की भी है, दोनों को हमने ऐड किया एंड वी गेट द आंसर 14 पाई. तो पाई की वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देंगे 22/7 एंड वी गेट द 44 मीटर स्क्वायर. ये तो हमारा जो हमारा कैनवस यूज़ हुआ है टेंट बनाने के लिए वो एरिया आ गए. अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है. तो कॉस्ट इन्होंने बोला हुआ है कि 500 पर मीटर स्क्वायर है. तो 44 मीटर है हमारे पास, तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 से, एंड वी गेट द आंसर 22,000. So this is the total amount that we have to pay for it. Now come on the last question from this exercise, question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius is 3.5, find the total surface area of the article. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर था, सिलेंडर की दोनों साइड से हमने हेमिस्फीयर फॉर्म में स्कूप आउट कर लिया, उसको निकाल लिया वहाँ से. तो हमारे पास जो बचा हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है. तो हमें एरिया क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये वाली शेप का प्लस एंड दिस वी हैव टू फाउंड. तो चलिए करते हैं. रेडियस हमें गिवन है ऑलरेडी 3.5, तो जो हेमिस्फीयर का है और जो सिलेंडर का है दोनों का सेम ही रेडियस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों एक ही उस पर बने हुए बेस पर. हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल ऑल्सो भी सेम जो सिलेंडर का है. हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का जो हमने कॉर्नर वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है वो लिया है, और यहाँ से हमने किसका सरफेस एरिया ले लिया, दोनों हेमिस्फीयर का, तो +2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². तो दो हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इन दोनों में से हमने जो कॉमन था उसे कॉमन ले लिया एंड व्हाट इज लेफ्ट H + 2r. एंड नाउ वी जस्ट पुट डाउन द वैल्यू एंड वी गेट दिस आंसर. ये आंसर आने के बाद हमें अभी इसमें कॉस्ट भी बतानी है, जो कि कितना है 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास जो टोटल एरिया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, एंड एट लास्ट वी गेट द टोटल कॉस्ट दैट इज 3740. सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन. I hope that all of you get clear this exercise. Thank you student and have a nice day.